Good morning, students. Hope you all are doing well. So, today we will start the chapter Food and Digestion from the subject Science. So, let's start. In this small session, we would cover the topics given below, which are what is food, types of food, why should we eat healthy food, or we can say why should we not eat junk food, why we need food, food groups, what are nutrients, different type of nutrients, sources and functions of the nutrients, roughage and water, and balanced diet. What is food? Food is a nourishing substance that is eaten or drunk, taken into the body to sustain life. Means, as a machine needs power to run, in the same way, all living beings from the smallest to the biggest on the earth need food to work. Food gives us the energy required for the growth of our body and for doing different functions. Types of food. Now there are two types of food, healthy food and junk food. Healthy food provides energy and decrease the risk of so many diseases, and they are easily digestible. हेल्दी फूड्स बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, किसी भी डिजीज के होने को डिक्रीज करते हैं, एंड दे आर इजीली डाइजेस्टिबल. फॉर एग्जाम्पल, vegetables, fruits, milk and whole grains. On the other hand, junk food, they are rich in sugar and fat, so they may lead to many health issues like heart and liver diseases. For example, chocolates, candies, pasta, burgers, these all things are rich in sugar and fat, and fat is we should not take in much. They are not good for our health. So we should take healthy food and we should avoid more and more junk food. Why we need food? So in our daily life we need food to fulfill many purposes, and some of them are written here. First, to get energy which allow us to breathe, think and move. फूड हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन ने 2 या 3 दिन से फूड कंज्यूम नहीं किया, तो मे बी उसको थिंकिंग में प्रॉब्लम आए, उसका माइंड इतने अच्छे से ना चल पाए बिकॉज उसने 2-3 दिन से फूड नहीं खाया, वो इसका माइंड एक्टिव नहीं है, और मे बी उसको चलने में भी प्रॉब्लम आए, उसकी बॉडी में वीकनेस आ चुकी हो. तो फूड हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको एक्टिव करके रखता है ताकि हम अपने सारे डेली वर्क्स इजिली कर सकें. So food allows us to do our daily works, we can say that. Second point, to keep the body fit, healthy and warm and disease free. फूड हमारी बॉडी को फिट, हेल्दी एंड डिजीज फ्री रहने में हेल्प करता है. दैट मीन्स अगर हम बट कीप इन योर माइंड दैट फूड शुड बी हेल्दी, नॉट द जंक फूड. if we are taken the healthy food, so we will always be healthy. Third point, food helps to grow new cells and repair damaged cells. Suppose if someone get injured, then doctors always suggest us to take healthy food to recover quickly. Why? अगर कोई इंजर्ड हो गया, किसी को चोट वगैरह लगी, तो डॉक्टर हमेशा हमें सजेस्ट करता है कि इस टाइप का फूड कंज्यूम करो ताकि हमारी जो भी वाउंड्स या इंजर्ड जो भी चोट लगे वो जल्दी से रिकवर हो जाए. अगर हम फूड नहीं लेंगे तो मे भी हो सकता है वो चोट जितनी जल्दी सही हो सकती है, जब हम अच्छा फूड ले रहे हैं तो वो और ज़्यादा मे बी वर्स्ट हो जाए और मे बी काफ़ी टाइम ले ठीक होने में. तो काफ़ी सारे पर्पसेस हमारी डेली लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें फूड हमारी हेल्प करता है. Now we will discuss about food groups. A food group is a collection of foods. Eating only one type of food does not provide sufficient nourishment to our body. So if we eat a variety of foods, then our body will receive all the nutrients. अब इसे कैसे समझेंगे? सपोज करो
किसी का चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, एक चॉकलेट खाएगा, 2 खाएगा, 3 खाएगा, एक टाइम आएगा कि अब बस, मतलब अब मीठा नहीं खाना, अब बस मन भर गया। तो जैसे हमारा टेस्ट हमें दूसरे टाइप के लिए मतलब चाहिए, सेम हमारे फूड को, जो हमारा फूड है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी सिर्फ एक टाइप का फूड हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं है। हमारी बॉडी को भी अलग अलग टाइप के फूड की नीड है, बिकॉज फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हर एक न्यूट्रिएंट का अलग अपना एक फंक्शन होता है। सो इफ वी रिसीव ऑल द न्यूट्रिएंट्स, then we always be fit and healthy. Now, so what are nutrients? Food contains special substances called nutrients. अब फूड में अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं हर एक फूड में, सो उन सब्सटेंसेस को न्यूट्रिएंट्स बोल रहे हैं, एंड दे आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी। अब इन न्यूट्रिएंट्स में से कुछ है जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, और कुछ बॉडी को फॉरेन डिजीजेस से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स इसीलिए हमारे फूड जो ग्रुप है उसमें अलग अलग टाइप के जो कलेक्शन ऑफ फूड्स है उसकी नीड है। सिर्फ एक फूड सारी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता, बिकॉज हर एक न्यूट्रिएंट का अपना एक फंक्शन है। सो डिफरेंट फूड कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नाउ द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, and here the nutrients are divided into 5 main groups. First, carbohydrates, second, proteins, third, fats, fourth, minerals, and fifth, vitamins. Carbohydrates are also known as energy giving foods. Carbohydrates are foods that give us energy and they release energy very quickly. So carbohydrates are needed by our body to get instant energy. People do perform a lot of physical work, require a lot of energy and hence need food which is rich in carbohydrates. अब काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, सच एज लेबरर्स, फार्मर्स हो गए, स्पोर्ट पर्सन्स हो गए, नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स। उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वाई? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, क्योंकि वो तुरंत तभी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दैट्स वाई स्पोर्ट्स पर्सन जितने भी होते हैं, एथलीट्स वगैरह, जितने भी लेबरर्स होती हैं, जो भी सामान वगैरह ढोने का काम करते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा चाहिए होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, sugars and starch. Sugars, some carbohydrates are sweet in taste, like ice cream and chocolates and many more. They are called sugars. And starch, some carbohydrates do not taste sweet, like rice, potato, and etc. They are called starch. Proteins are also known as body building foods. They help us to grow, help in building muscles as well as in repairing our worn out cells and tissues of our body. प्रोटीन्स बॉडी में मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। अगर कहीं पर भी वाउंड्स या चोट वगैरह लगी तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। एंड सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स ग्रोइंग चिल्ड्रंस को चाहिए होते हैं। ग्रोइंग चिल्ड्रंस नीड्स लॉट ऑफ प्रोटीन्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर बॉडी। वाई? बिकॉज उनको एक ग्रोइंग एज है, तो इस टाइम पर उनकी मसल्स बिल्ड का जो प्रोसेस है वो कैरी ऑन होता है, वो चल रहा होता है। तो दैट्स वाई जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस है, जो यूथ है, यंग चिल्ड्रंस है, उनको सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स की नीड होती है। एंड देन फैट्स आर द एनर्जी बैंक ऑफ द बॉडी। दे आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड्स। दे आर स्टोर्ड इन द बॉडी। ये भी सेम कार्बोहाइड्रेट्स की तरह एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये हमारी बॉडी में स्टोर्ड हो जाते हैं। एंड दे गिव अस मोर एनर्जी एंड हीट देन कार्बोहाइड्रेट्स। एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, फैट गिव्स मोर एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स जितनी एनर्जी देते हैं उसके कंपैरिजन में फैट ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एंड दे हेल्प टू कीप आवर बॉडी वार्म एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। एंड कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ये बॉडी को भी ज़्यादा वार्म रखते हैं।
Our body requires little amount of fat and too much fat causes a disorder called obesity. हमारी बॉडी जब हम फूड ले रहे हैं तो उसमें फैट की अमाउंट बहुत कम होनी चाहिए. अगर फैट बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से एक डिसऑर्डर, एक डिजीज हो सकती है, दैट इज ओबेसिटी. ओबेसिटी मीन्स फैट बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है बॉडी में, जो हम बोलते हैं मोटापा हो जाता है, तो बॉडी में कहीं कहीं फैट इकट्ठा हो जाता है. सो द एनर्जी स्टोर्ड, जो हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड हो गई है, अगर मान लो काफ़ी टाइम तक हमें फूड नहीं मिल रहा है, इनफ नहीं है, तो उस टाइम पर ये जो फैट जो स्टोर्ड किया गया है उस टाइम पे इस फूड को हम यूज कर सकते हैं. दैट्स वाई फैट्स को एनर्जी बैंक ऑफ द बॉडी भी कहा जा रहा है. एंड फैट ऑल्सो कीप आवर बॉडी वार्म. एंड फैट्स सबसे ज़्यादा किसमें होता है? ऑयल, बटर, घी. तो जितनी भी घी वगैरह वाली चीज़ें होती हैं इनमें फैट्स बहुत ज़्यादा होता है और ये हमें बहुत कम अमाउंट में अपने फूड में कंज्यूम करना चाहिए. Vitamins are also known as protective food. They protect us from certain diseases and keep us healthy and fit. Our body require vitamins in less quantity, but we need to take them regularly. विटामिन्स हमारी बॉडी को डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं, हमें हेल्दी और फिट रखते हैं, और ये हमारे को ज़्यादा अमाउंट में नहीं ज़रूरत पड़ती लेने की, बट हाँ डेली में ज़रूरत, मतलब डेली रेगुलरली इनको लेना ज़रूरी है. अब देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स. विटामिन ए इज़ गुड फॉर आइज एंड स्किन. विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है. एंड कैरेट्स में विटामिन ए पाया जाता है. सो अपनी आइज़ को हेल्दी रखने के लिए हमें कैरेट्स कंज्यूम करने चाहिए. एंड विटामिन बी इज़ रिक्वायर्ड फॉर वेरियस फंक्शंस ऑफ बॉडी, लाइक दे स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम, improve memory and etc. विटामिन बी बहुत फंक्शंस हैं इसके, विटामिन बी के बहुत ज़्यादा टाइप्स भी हैं जो हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे. सो विटामिन बी बहुत सारे फंक्शंस में ज़रूरी है, जैसे स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए, मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए. एंड विटामिन सी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड एंड इन्फेक्शन. विटामिन सी हमको इन्फेक्शन और कोल्ड से बचाने के लिए हेल्प करता है. विटामिन सी मोस्टली ऑरेंजेस में बहुत ज़्यादा पाया जाता है. फिर विटामिन डी इज़ नीडेड बाय आवर बोन्स. हमारी बॉडी में मसल्स, बोन्स को सबसे ज़्यादा विटामिन डी की नीड होती है. एंड सन इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी. हमारे को धूप से, सन से जो रेज आ रही है उससे डायरेक्ट विटामिन डी मिलता है. सो सन इज़ द नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का. Minerals are also called protective food and keep us healthy and fit. Our body needs minerals like calcium, iron, iodine, phosphorus, etc. Calcium helps us in building bones and teeth. Calcium हमारी bones and teeth को build करने में help करता है. Iron helps in the formation of blood. It also gives the red color to our blood. ब्लड के बनने में आयरन हेल्प करता है. एंड जो ब्लड का कलर हमारा लाल होता है उसमें भी वो जो कलर लाल है वो भी आयरन की वजह से है. एंड आयोडीन हेल्प्स टू डेवलप ब्रेन एंड बोन्स. सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शंस इन द बॉडी. फर्स्टली, you all will have to read this table carefully. So let's start. Carbohydrates, food sources at starch in wheat, rice, potatoes and breads which are not sweet in taste, and as sugars in sweet foods and soft drinks. And the function of carbohydrates is that they give instant energy. Second, proteins. Food sources are milk, pulses, beans, cheese, mushroom, meat, fish, eggs, and etc. And the function of the proteins are it promote growth and building of muscles, and it repair damaged cells and tissues. Third one, fats. Food sources are nuts, cooking oil, cheese, butter, cream, ghee.
and the functions of fats are they give energy and warmth to our body and they absorb certain nutrients. The last one, vitamins and minerals. The food source are fresh fruits and green leafy vegetables, and functions of vitamins and minerals are they help to fight diseases and they strengthen the disease fighting capacity of the body. Now roughage, which are also known as dietary fibers or simple fibers, and water. Beside nutrients, food also contains roughage and water. Roughage and water are not the nutrients, but they are needed by our body for proper digestion and transportation of food that we eat. Roughage or fiber are the part of food that our body cannot digest. It helps in removal the waste material from our body. Raw vegetables and fruits are rich source of roughage. Roughage डाइजेस्ट नहीं की जा सकती, ये सिर्फ हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करते हैं. वाटर हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड एज वेल एज रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. वाटर डाइजेशन में भी हेल्प करता है एंड बॉडी से वेस्ट मटेरियल को भी रिमूव करने में हेल्प करता है. वी नीड टू ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. हमें एक दिन में कम से कम 2 लीटर वाटर ड्रिंक करना चाहिए और 6 to 8 ग्लासेस मीन्स. वाटर रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में वाटर हेल्प करता है एंड ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ आवर बॉडी वेट इज ड्यू टू वाटर. हमारी बॉडी का 2/3 वेट वाटर की वजह से होता है. फॉर एग्जाम्पल किसी का वेट 30 kg है तो दैट मीन्स 2/3 ऑफ 30 kg इज 20 kg इज ड्यू टू वाटर. अगर किसी का वेट 30 kg है तो उसमें से 20 kg वेट उसका वाटर की वजह से है. नाउ बैलेंस डाइट. Balanced diet is a diet which contains all the nutrients in right amount with adequate amount of roughage and water is called a balanced diet. That means for proper growth and development of our body, our diet should contain proper amount of proteins, fats, carbohydrates with enough quantity of water and roughage, minerals and vitamins. Balanced diet क्या होती है? इसमें हर टाइप की न्यूट्रिएंट्स की राइट अमाउंट होनी चाहिए. ऐसा नहीं सब इक्वल होना चाहिए, हर 20% नहीं, जितने की नीड है. जैसे फैट्स हमारी बॉडी को कम चाहिए तो उसकी लिटिल अमाउंट होनी चाहिए. एनर्जी गिविंग फूड्स, कोई लेबर है बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता है तो उसके बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने चाहिए. ग्रोइंग चिल्ड्रन है तो उसको प्रोटेक्टिव फूड प्रोटीन ज़्यादा चाहिए. तो दैट मीन्स जो बैलेंस डाइट है मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. फॉर एग्जाम्पल अ बैलेंस डाइट फॉर अ सिक पर्सन, अगर कोई बीमार इंसान है तो उसकी बैलेंस डाइट में विटामिन एंड मिनरल्स ज़्यादा होने चाहिए. एज फॉर अ ग्रोइंग चिल्ड्रन उसकी डाइट में एनर्जी गिविंग फूड्स एंड प्रोटीन्स रिच डाइट होनी चाहिए उसकी. सो बैलेंस डाइट इज अ डाइट विद द राइट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन इट. Now there is an assignment which is mandate to complete. Make a fresh notebook of the subject science and write down the question and answer in it. Thank you.